in my family. First, my father. My father's name is Prathama Gautam. He is government employee. Her zodiac sign. His zodiac sign is Libra. Second, my mother. My mother's name is Sushila Devi. She is a homemaker. Her zodiac sign is Sagittarius. Fourth, my brother. My brother's name is Mangushna Gautam. He is a let's talk about my favorite things. My favorite car is Mercedes. My favorite bike is Kawasaki Xenosa. My favorite flower is tulip. My hobbies are playing skating and swimming, so on. I want to be a zoologist. There. जी इतना सारा जो गोल करते हैं ये एक दिन का है ये ध्यान से करने Hello everyone. Hello. How are you? I am fine, thank you. And you? I am fine. I am also fine. My name is Asim Patel. I am a businessman. Uh, my zodiac sign is Pisces. My blood group is B positive. Uh, I am here because I want to improve my English spoken in Jhasar classes. My hobby is listening music. Uh, my favorite color is blue. Yeah. तो आखिरी में जाके तो हम इस टाइम पे नीचे करते हैं यस हम अतर से बोल रहे हैं अतर सबसे आखिरी में आया Good evening, everyone. Good evening. I'm here to introduce myself. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Kashyap Gupta. I am from Mother Teresa Nagar. I am pursuing English spoken classes from Jhasar to improve my English spoken and to increase my confidence level. I am 17 years old and my short-term goal is to have an admission in a good college and long-term goal is to is to have a reputed job in banking sector or railway sector, government job, and my sunshine is Germany. Let's talk about my family. I have 4 members in my family. First of all, for my father. His name is Mr. Shiv Kumar Gupta, and second my mother. Her name is Mamta Gupta, and third my brother. His name is Krish Gupta, and lastly me. My hobbies are sketching, drawing, dancing, etc. There. इसका भी एडमिशन बाद में ही हुआ है इसको काफी इम्प्रूव करके
Next. Good evening. Good evening. Hello. Hello. How are you all? I'm fine, thank you. And you? I am also fine. There are four members in my family. Firstly, my father name is Pramod Patel. Secondly, my mother's name is Rashmi Patel. Third, my sister's name is Rupali Patel. And last me, my name is Nikhil Patel. My hobbies are listening music, swimming, and reading books. They, I am basically from Panagar, but currently live in Vijayanagar, Jalpur. I am studying in ninth standard. I am 14 years old. There. इस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी काफी अपने मन से आती है आना सभी को हाँ Good evening, everyone. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I am also fine. My name is Vinayak Patel, and I am 14 years old, and I am studying in class 9. And my hobbies are to play badminton, to read comic books, and I want to be a doctor. And in my family there are three family members. First one is my father. His name is Mr. Dharman Patel, and my mother name is Mrs. Titi Patel. And third is me. My name is Vinayak Patel. That. आज तुम्हारा पहली एडमिशन हुआ है तो तुमने देर बोलना भी सीख लिया और काफी सारी लाइनें बोली Hello everyone. How are you all? I'm fine, thank you. And you? My name is Krish Gupta and I am 15 years old. My hobbies are playing cricket and gaming, etc. There are four members in my family. First of all, my father's name is Krish Gupta and his son's name is Harris. And he is secondly, my mother name is Mamta Gupta and her son's name is Leo. Third one is my sister. Her name is Kasha Gupta and her son's name is Jamani. Fourth is me. And my favorite color is red and black. My favorite flower is red rose. My favorite car is Mahindra Thar and Fortuner, etc. My favorite bike is Hayabusa and there. इस बच्चे का एडमिशन आपने ठीक कर लो लेकिन इसमें जो लोग जाते हैं Good evening, guys. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm also fine, and thanks for giving me opportunity to introduce myself in front of you. It's my pleasure. First of all, myself Saurabh Badgenia, and I am from Kaimur, Katni. There are four family members in my family, and I have one elder brother, and including me. And I done my schooling from ACC Higher Secondary School, Kaimur, Katni, and currently I live in Jabalpur to continue my bachelor graduation from Sri Ram Group of Institute in Mechanical branch. And I recently joined Chai Spoken English classes to improve my English spoken and increase my confidence also. And I respectively got in both classes 80 and 81 marks. And my short-term goal is to get a job in well-reputed company, and long-term goal is to earning a knowledge and experience to improve, to help Indian Army and Indian security
and I want to be a inventor to invent something who help our in daily life. And I little dream to open my YouTube channel, and our other long-term goal is to open my own company with my friend Ankush Jaiswal. And my hobbies are playing cricket, watching movies, and hang out with friends. And my strength is self-motivation and quick learner, and weaknesses are to trust anyone quickly. And I am a good leader when I lead the team. People taking interest in their work, and they improve our work very quickly. Thank you. There. It's like Hello everyone. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm also fine. My name is Neetu Patel. I'm a housewife. My zodiac sign is Taurus. My favorite color is blue and gray. Okay. Hello everyone. How are you? First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Ankush Jaiswal. I am basically from Kaimur but staying in Jabalpur. And I did my schooling in Kaimur Secondary School, Kaimur in 2018. Currently, I am pursuing BTech from Global Nature Care Sangathan Group of Institution in Jabalpur. And my stream is mechanical engineer. And my family CGPA is 7.45, and I belong to a joint family. My strengths are I am quick learner, self-motivated, and hardworking and disciplined person. And my short-term goal is get a job in reputed company. And my long-term goal is achieve a good position where can I build my career. And my big dream is I open my own company with my partner. And my hobbies are listening music and workout and cooking. So there. Hello guys, good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? Thank you for giving me to opportunity to introduce myself in front of you. My name is Rahul Burman, and I am belong to Kaimur. Currently, I am living in Jabalpur. Uh, I have done my schooling ACC High Secondary School. I am pursuing Sri Ram Institute of Technology in Mechanical branch. Currently, I am joining English coaching. English coaching classes because I am increase my confidence and increase my spoken English. My short term goal is get a job in reputed company. My hobbies are playing cricket, cooking, and etc. Hello everyone. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm also fine. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. Myself, Faiz Tiwari, my sun sign is Aries, my blood group is A positive. I'm basically from Katni, but currently I live in Jaipur. I have completed my schooling from Kids Care High Secondary School, Katni. And currently I'm pursuing spoken English classes with Shah sir. If you're talking about my hobbies are listening music and playing games. But sometimes I write some rhymes in my spare time.
I'm quick learner and fully open-minded person. And my weaknesses, I never there. Good evening, everyone. How are you? I'm also fine. My name is Ranshu Jain. My father's name is Mr. Manoj and my Varsha name is Mrs. Varsha Jain. My sister, my sister's name is my sister's name is Madhavi Jain and Yashi Jain. My hobbies are playing football and singing songs. My favorite color is matte black. हमारे हिसाब से कर दीजिए। हमने देखा कि तुमने बिल्कुल सही फ्रेम चुना, बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए, ऊपर से रिकॉर्डिंग में देखा। Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? My name is Akshay Patel. I am from class 40. My school name is Rashmi Secondary School. My blood group is B positive. My hobby is playing football. My favorite color is blue and black. I come here because I improve my English spoken. They are? Yes, sir. Is anybody there? No, sir. Window closed? Yes. बच्चों हम पूछेंगे नहीं, हमें उम्मीद है कि सब लोगों ने लिख लिया होगा और अच्छा सा जानकारी होगी। Should I erase this? Yes, sir, you should erase this. क्या मैं इसे मिटा दूं? Yes, sir. अब ये तो हम रोज प्रयोग करते रहे, आज एक राउंड तो ग्रुप में भी चला। हमने कौन सी वर्क रखी? वर्ब कौन सी रखी बच्चों? ग्रेस। तुम कोई सी दूसरी वर्ब रखी बताओ। नहीं, एक कॉमन प्रैक्टिकल सेंटेंस बना के कंप्लीट द वेरी गुड। क्यों ना अपन क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर दिए, तो उनसे पूछो फर्स्ट ठीक है, तो किसी की कट जाएगी नहीं, ये हम यहाँ से शुरू अभी ठीक है, चलाइए। एक वर्ब भी करें। Yes, we should. चलिए जो उनको ऑर्डर रिक्वेस्ट मिलेगी। Should I go? Should I go?
sit? Yes, sir. Should I sit? Yes, sir. Sit. Yes, बैठ जाओ. यहाँ पे बैठ जाओ. आप बैठिए. Can I study? नहीं, sorry. Sorry. हम जैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको वहाँ अच्छा करते हैं. बेटा तुम इधर आओ. Should I try that? Yes, you should try it. Can I not listen? Sorry. Sorry. तुम वहाँ बैठ जाओ. Should I burn the candles? Yes, you should try it. And candle now? Sorry. क्या मैं candle दे दूँ? हाँ, अब सब सुनाइए, संभवतः सही उत्तर देंगे. स्टार्टिंग हमने वहां से उधर कर दी थी तो तुम लोग को आंसर देना भी आता नहीं. इस बार सुनना. You ask. should I leave? Yes, you should leave. क्या मैं जाऊँ? उससे भी नहीं बन पाया. हम एक बार मनीष से पूछ के देख लेते हैं. Should I give you another interview? Sir, you should give me another. चलो इनसे भी नहीं बना. अब तुम दोस्त हमसे पूछो. Should I stay there? Yes, please. एक ही उत्तर. ठीक है. तो हमसे कुछ भी कहा. Should I write? Yes, of course. ठीक है. उत्तर. आप पूछिए. Should I run in track? In the track? ओके then. अपडेट कर लो. हिंदी चाहो तो. क्या मैं ट्रैक पर दौड़? ठीक है. दौड़. Should I have? ये इतने उत्तर पर्याप्त है तो वहाँ वाला सुना सबने. उसका भी से जो हमने उसको कर दिया. इधर भी सुना. ये प्रैक्टिकल आंसर. शुरू करें. 3 में से कोई भी एक उत्तर दे. हाँ, स्टार्ट कोई एक नए वर्ड ले लो बेटा. ये घर में रोज प्रयोग करने वाला सेंटेंस खूब बोल सकते हैं. Should I have moves? अपडेट. क्या मैं moves करूँ? हो गया. एक उत्तर ये हो गया. Should I ride a bike? Sorry. Should I ride a bike? Speaker. Yes, why not? हाँ, ये भी सही है. ये हमने नहीं बोला था. ये भी सही है. Can I cycle? वेरी गुड. ये हमें लग रहा था हमने नहीं दिया है लोग तो इसलिए हमने नहीं बोला. ये चौथा उत्तर हो गया मेरा. Should I make mistake? Sorry. I'm sorry. You ask. Should I make mistake? Yes, please. ये क्या मैं गलती करूँ? Should I teach? Yes, of course. क्या मैं पढ़ाऊँ? एक मिनट थोड़ा सा. एक
एक आइडिया और दे रहे हैं हमसे पूछना। Why not? क्यों नहीं? अब हम घरेलू सेंटेंस पूछ रहे हैं, बिल्कुल। अब उनसे पूछ लेते हैं, वो ज्यादा प्रैक्टिकल। Should I take one more रसगुल्ला? Yes, of course. क्या मैं एक रसगुल्ला और ले लूं? Yeah, yes. घर में इंग्लिश कैसे बोलोगे? एक और हम पूछ लें तो बहुत देर से उसने कुछ नहीं बोला। Should I take आम का अचार? Yes, of course. मैं आम का अचार ले लूं? ये हो गया। इधर पूछ लेते हैं। Should I use washroom first? क्या मैं वॉशरूम पहले यूज कर लूं? और जम के आई है ना? प्रैक्टिकल सेंटेंस। इससे पूछ लेते हैं। Should I take shower first? Yes, sir. क्या मैं पहले नहा लूं? जी हाँ. प्रैक्टिकल सेंटेंस। Should I volume up the TV? Yes. क्या मैं टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दूं? अभी एक प्रैक्टिकल इससे यू आर डन ना? इससे पूछ लिया क्या? इससे पूछ लिया। Should I switch off the fan? Yes. पंखा बंद कर दूं? प्रैक्टिकल सेंटेंस। जैसे घर के सेंटेंस पूछोगे तो अपने आप उसमें निकलेंगे। Should I use your phone? Should I use your phone? Should I use your phones? कितना बढ़िया प्रैक्टिकल सेंटेंस। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, भैया अपनी बैटरी चली गई या कुछ और हो गया, प्रॉब्लम हैंग हो गया, तो लड़कियां अक्सर कभी भी भाई साहब 1 मिनट के लिए फोन दीजिए ना। ये हिंदी हो गया। फोन चाहिए तो बट से कोई भी भाई साहब बन जाते हैं ना। उस आ जाए अंग्रेजों के साथ ये पंचायत नहीं है, रिलेशन नहीं, सीधे सीधे एक्सक्यूज मी मिस्टर मिसेस मिस, रिश्ते नहीं है। Should I make tea for you? Yes. क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं? जी हाँ. तुमने आपको शुगर था? हाँ बिल्कुल. Should I try to now? तो जैसा ही बोलना है। Should I try to? Sorry. Sorry, please come. सही मारे। मखमल का जूता सही है। Yes, of course. क्या मैं कर सकता हूँ? Sorry. हाँ, शायद अपने कैन चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है। आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। क्या मैं बात चला सकता हूँ? Sorry. क्या मैं बात चलाऊँ? Yes. हाँ. Should I ride your bike? Yes, bike.
मैं मोहम्मद भाई Yes, of course. No problem. Yes, of course. Sorry. एक काम कर, हमारे भी लेता है। हाँ वही कहीं ध्यान ना दे, सही है। Should I cut the vegetables? Yes, why not? प्रैक्टिकल सेंटेंस से ये आपके काम में आ सकता है। बेटा तुम भी मम्मी से पूछ सकती हो, तुम भी पूछ सकती हो। आजकल हालांकि आजकल तो लड़के भी काम कराने लगे मदद से। So that capture this. Yes, of course. Can we simply go to Should I sing a song? Sorry. Should I sing the song? गाले हैं जो यार, इससे तुम लोग को एहसास होता है ना कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का नया है। कान दो, 27 साल से एक गाना गाओ गाओ। Should I sing the song? Sorry. Sorry. इतना सब तो बोला ही नहीं आपने, आपने तो बोला यस। Sorry. Yes, why not? Sorry. यहाँ किसको बधाई बहन की प्राप्ति हुई? हाँ राइट। इधर दे सकती हूँ। अरे बाप Sorry. Sorry, बोल रहे थे चैप्टर ज़्यादा पढ़ा दिया। I should be stated. Sorry. अब अपन बच्चे को छोड़ देते हैं, जब उसको याद आएगा तो हाँ कर लेंगे। Should I go to the camera? Yes, of course you can. Sorry. ये भी सही है, ये भी सही है। यस चलो छोड़ देते हैं। जो लोग नए आए हैं वो अभी पीछे से लिखेंगे चीजें। हमने राइटिंग वर्क रजिस्टर के पीछे से ही शुरू करवाया था। सबसे आखिरी में वर्ब्स, फिर इंटरेक्टिव एरिया, फिर वर्ड मीनिंग, और सामने एक पेज मंत्र के लिए छोड़ा है, एक मिसलेनियस के लिए 2, तो एक पेज ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और कैन के लिए एक। आपको मात्र 4 पेज छोड़ देना है। जो लोग नए हैं, जो लोग लेट आए, सामने से आप 4 पेज छोड़ दीजिए, 1 2 3 4। इसने एक एक्स्ट्रा छोड़ दिया है जिसमें अपना नाम लिखा हो, तो एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं आप, लेकिन 4 पेज सामने से छोड़ दीजिए। और कुछ मत मोड़िए, बस यहाँ पे अगली हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं।
हम आपको एक बार और बता दें सभी को, अपनी मैक्सिमम हेडिंग राइट साइड वाले पेज पे ही हो। हर चैप्टर की हेडिंग राइट साइड में होगी। एक आध ग्रामेटिकल पोर्शन जो आएगा वो लेफ्ट में उसकी हेडिंग आएगी, अन्यथा सारी हेडिंग सीधे हाथ वाले पेज पर, आपका जो सीधा हाथ है राइट हैंड, दायां हाथ, इस पे हेडिंग होगी। हमने इसका ऑलरेडी पलट किया है तो ये यहाँ सीधे हेडिंग ये आ। तो आज हम दूसरे चैप्टर की हेडिंग यहाँ लिख रहे हैं। हम ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि यहाँ लिखेगा नहीं। ये हिंदी सबके लिए लिखना आवश्यक नहीं है, ये हम उन बच्चों के कारण लिखवा रहे हैं जिनका अंग्रेजी से पहला परिचय, हालांकि इनमें से काजल और एब्सेंट है। का मैं छोटी होती मात्रा और इसमें इसका उच्चारण नहीं होता है, साइलेंट होता है। कुल्ड बोलना हंसी का कारण बन सकता है। तुम वापस उधर चले जाओ, है ना, तुम इधर आ जाओ, क्योंकि वो दोनों भी कजिन है और तुम दोनों सिबलिंग्स हो, तो ऐसे में बात करने की संभावना है। हाँ, हालांकि तुम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, अच्छी बात है, गुड। कल हमने पहले कुछ नहीं बोला था, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ गए थे, लेकिन फिर चर्चा परिचर्चा जैसे शुरू हुई तो बोला यार ऐसे में तो एक तो वैसे ही फोकस नहीं हो पा रहा है और चर्चा के चक्कर में इससे दोहरा नुकसान होता है दोस्तों। आप हमारी बात को आजमा के देखिए, जो व्यक्ति आपसे कुछ पूछ रहा है वो तो बनने वाले सेंटेंस से हाथ धो बैठता है और जिससे पूछा जा रहा है वो भी नहीं सुन पाता उससे, तो दोनों के नुकसान। दोस्तों पिछली बार तो हमने आपको हेडिंग की तुरंत बाद क्या लिखवाया था, आइडेंटिफिकेशन। इस बार हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, इट विल डू। आज हम एक छोटा सा पॉइंट लिखवा रहे हैं, इतना बड़ा होगा बस, छोटे सा है, लेकिन वो हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ओरली हम बोलेंगे मौखिक रूप से, और आपको लिख लेना है, भले आपकी स्पेलिंग गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आज हमें राइटिंग चाहिए, तो आप जो या तो जो खाली हाथ बैठे हैं वो अपने घर चले जाएं या फिर कुछ करें, तभी हम आपको बैठने देंगे, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। या तो घर जाके ले आए तुरंत रजिस्टर चाहिए। अच्छा, आप मदद करना चाहोगे? हाँ, वो दे रहा है तो मैं कुछ नहीं, तो ये तो क्लास गई तुम्हारी खुद, क्लास तो चली जाएगी। कहीं पे भी लिखना बेटा, उससे कोई बेटा एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान दें, खड़े हो। अपन शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो अपन बिना कुर्सी को खिसकाए नहीं बैठते, अजमा के बैठते हैं, और जहाँ होगी वहां से थोड़ा जरूर खिसकाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इधर कर ली, ये घर बढ़ गया, वहां पे घर कम हो गया, तो प्लीज यहाँ पे ऐसा ना करिए। यहाँ पे बिल्कुल अरेंजमेंट आप देखिए, है ना। शादी पार्टी में जाइए तो खिसकाइए, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो ये जो सीक्वेंस होता है ये बिगड़ जाता है।
लिखिएगा दिस इज द पास्ट ऑफ कैन। इसको शुद्ध लेख बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिक्टेशन। क्या कहते हैं? डिक्टेशन। दिस इज द पास्ट ऑफ कैन। कैन को दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमास लगा लीजिए, दो। नहीं बताना है बेटा, हम यही तो करवा रहे हैं। आज हमने थोड़ी सी तैयारी की है, मतलब थोड़ी सी शुरुआत की है, सॉरी। आगे हम फिर 2 लाइन लिखवाएंगे, फिर आगे 3 लाइन, तो अभी आधा तो आनी चाहिए। कोई हमने इतना बड़ा पैराग्राफ थोड़ी लिखवाया, 1 लाइन में तुम पूछने लगे। कॉलेज गोइंग हो, छोटे बच्चे भी नहीं हो, एक छोटी सी लाइन तो लिखवाई बेटा, फुल स्टॉप है, कैन को इन्वर्टेड कॉमास में। This is the past of Ken. 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 सर मैंने पास्ट को पास्ट लिख दिया। This is the past of Ken. हमने पहले ही बोल दिया था, आप लोग हमारे शब्दों पे कई बार ध्यान नहीं देते हैं, तो सेंटेंस में भी गलती होती है और राइटिंग में। हमने साफ बोल दिया था, गलत लिखिए आप, हम चेक नहीं करेंगे। आपने लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल। लिखवाना भी जरूरी नहीं था, बस हम धीरे धीरे आपकी कुछ चीजों को बढ़ा रहे हैं। This is the past of Ken. 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 This is a past of Ken. Sorry. Good. This is past of Sorry. Good. Thank you. Next. Sorry. That was right. This is the past of Ken. बेटा मम्मी पापा को कहीं बाहर भी जाना हो तो मत जाना, हमारे यहाँ रह लेना, दो जाना, लेकिन क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाती है। इसको हम कंटाप का नाम देते हैं कि इससे पहले बैठे 2 बड़े भैया को यहाँ पे अच्छे जम के पड़ा होगा, शर्म आई होगी, आना चाहिए, जरूरी है। तो हमने ये ऐसा चाहो तो आप ऐसा निशान भी लगा सकते, ऐसा बनना है, ऐसा। इसका हिंदी कौन बताएगा इस लाइन का? कोई नहीं बताएगा। हाँ, ये कैन का पास्ट है, मतलब हाँ तो ये कैन का अतीत है। वेरी गुड, अच्छी भाषा का प्रयोग किया। गुड, चलो भाई, इंग्लिश सीख पाओ ना सीख पाओ, यहाँ से जाते जाते हिंदी तो मैं अच्छी हो जाएगी। बोलो भारत माता नहीं, तो फिर हम इसलिए नहीं तुम्हारा सब लिखा हुआ इसलिए। ये कैन का भूतकाल है। यह कैन का पुराना रूप। चलिए बिल्कुल ठीक है। उसका हिंदी करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं था बस समय से, क्योंकि अपनी क्लास 1 वे नहीं है दोस्तों कि हम थोपते जाए और आप यस सर करते जाए और आखिरी में थैंक यू सर बोल के सबको शामिल होना जरूरी है। सही बोला है, करीब करीब वही है। हम बोल दे रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी को लगे तो लिखना। यह कैन का भूतकालिक रूप, थोड़ी सी हमने किताबी भाषा का प्रयोग कर, यह कैन का भूतकालिक रूप। किसी को लिखना लिख लो, नहीं तो इसमें रिकॉर्ड तो हो गया, हमने 2 बार बोल दिया। पॉज करके सोच सकते। आपने कल देखा था अपना इंट्रो रिकॉर्डिंग घर पे?
देखिएगा, सबकी देखिएगा और उससे इम्प्रूव कीजिए। आप पॉज कर करके सुन सकते हैं। चलिए एक सूचना हम आपको और देते, कुछ दिन बाद आपकी स्पीच आने वाली है जो कि 10 मिनट की देना है आपको यहाँ पर, और अगर वो अप टू द मार्क नहीं हुई तो हम फिर ऐसा कर लेते हैं आपसे कि आप रहने दीजिए, थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होके आइएगा, बाद में आइए। बच्चों से बोल देते, बच्चों तुम नहीं कर पाए अच्छे से, तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा तुम खराब कर रहे हो, तुम चले जाओ। इसलिए आपको रोज आना है और रोज तैयारी अपना बढ़ाना है। एक छोड़ दिया तो दूसरा लगा, दूसरा छोड़, कहीं ना कहीं से आपको सीखना है और आपको रोज अपने इंट्रो को कम से कम एक लाइन तो बढ़ाना है, तब जाके आप 10 मिनट तक का इंट्रो उस समय दे पाएंगे। उसको आप टेस्ट मान लो, आप उसको परीक्षा मान लो। यहाँ खड़े होकर आपको 10 मिनट बोलना तो उसकी तैयारी है। और उसको आने के पहले हम बकायदा आपको बहुत सारे डिटेल बताएंगे। 2 दिन तक हम डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद फिर आपसे तो यह कैन का भूतकालिक रूप है। कौन है? कौन? ये भूतकालिक रूप है, ठीक है। अब ये छोटा सा पॉइंट हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगाना हम भूल गए, आप ये भूल गए होंगे, लगा लीजिए। अब हम फिर से आपको शामिल करते हैं स्पीकिंग में। आपके लिए ये नया है, आपके लिए भी बेटा नया है, आपके लिए भी शायद नया है, आपके लिए। What should be the first point? The first point should be the identification. अब नए लोगों के लिए हम एक बार रिहर्सल दोहराएंगे। What should be the first point? The first point should be the identification. पहला बिंदु क्या होना चाहिए? My second question goes to you. What should be the identification? The identification should be गलत बताओ, लेकिन बता। चलिए कोई बात नहीं, आप हम बता। ये सब तो बहुत फैसिनेटेड है दोस्तों। आप में से किसी ने देखा सुना है तो हाथ उठाइए। थैंक यू। सो ऑन कुछ चलता है इसकी। अच्छा, पिछली क्लास में। लेकिन ये प्रश्न हम दोबारा उन लोगों से पूछ लेते हैं क्योंकि उस दिन के बाद बहुत सारे नए लोग आए हैं, चेहरे बदलते हैं। इसकी जगह पहले चलता था एटसेट्रा, ये जरूर सुना होगा, वो पुराना हो गया, प्राचीन, 2-3 छाप मान लीजिए उसको। और ये जीन्स लेटेस्ट लेगिंग्स। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। तो पूरा लिखते जाना और फिर फाड़ के पेज ले जाना रफ करके। What should be the second point? The second point should be the formula. एक बार फिर से नए लोगों के लिए। What should be the second point? The second point should be the formula. दूसरा बिंदु क्या होना चाहिए? दूसरा बिंदु फॉर्मूला होना चाहिए। And now my last question goes to you. अंतिम सवाल पहुंचता है आप तक। What should be the formula? The formula should be
अरे सीनियर होके वो गलत बोल गई, तो अपने मन से होता। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? हाँ, कई बार सीनियर्स गड़बड़ी कर जाते हैं ना, तो हालांकि वो वैसी गड़बड़ी नहीं है, उनको ये समझना चाहिए कि इस प्रश्न में वो शांत हो जाए, ये कॉमन सेंस है ना। लेकिन ओके, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज। चलो, एक दो लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया, उनको धन्यवाद। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउअडेज। ओके, तो भैया कौन सा फॉर्म लगाए, फर्स्ट के सेकंड? सेकंड ना? नहीं बच्चे, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं। क्योंकि गुड क्या है? गैंग का बोलो भारत माता। ये ऑलरेडी भूतकाल है, ऑलरेडी भूतकाल है ना। अभी अपन लिखो, सभी ने लिखो ना, हमने अभी तक मिटाओ तक नहीं। तो चूंकि ये अपने आप में भूतकाल है, इसलिए प्लस बोलो, हम लिखेंगे थोड़ी। हमने पिछली बार भी तुम लोगों से बोला था, और बोला तुम बोलोगे तब हम लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिया का पहला रूप। आगे बोलो। अंग्रेजी में आखिरी में सारे शब्द चले जाते हैं। कभी भी सेंटेंस बनाना हो तो इसकी बात मानना। और आज हम फिर से वही चीज बोलते हैं जो उस समय बोली थी, इन दो चीजों को लगा डाला तो पहले सेंटेंस के एंड में देख लो, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो फट से ये फॉर्मूला लगाओ, आपका सेंटेंस 99% सही होगा। 1% क्यों छोड़ा, समझ गए? प्रीपोजिशन की गलती, आर्टिकल की गलती, किसी से भी हो सकती। Have you written this? Yes, sir, we have written this. क्या आपने ये लिख लिया है? Should we start the round? Yes, sir, we should start. क्या अपन राउंड चालू करें? कल तुम बेटा यू पूछ रहे थे ना, किसमें यू रख दी? कल वाले यू प्रैक्टिकल नहीं, सबसे ज्यादा आई प्रैक्टिकल होता है। और अभी हमने क्या रखा? वी। ये दो प्रैक्टिकल। तो बना के देखना क्वेश्चन, जिसमें प्रैक्टिकल लगेंगे भी। तुम ही नहीं रख सकते, सी नहीं, यू नहीं। जैसे अभी हमने पूछा ना, शुड वी स्टार्ट, प्रैक्टिकल लग रहा है। अपन जैसे अपनी जबलपुर की भाषा बोलते हैं, चालू करें, वही भाव। दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको बता दें कि पहला राउंड हम जब भी नया चैप्टर देंगे हमेशा आई सीखेंगे, ताकि एकदम से स्ट्रेस ना आए। लेकिन एक चीज सबको बदलना होगी, कौन सी? वर्ब तो सबको बदलना। ऑब्जेक्ट आप अपने मन से लगा सकते हैं अगर जरूरत है, एक्सटेंशन आप अपने मन से लगा सकते हैं अगर आप लगा पाएंगे। लगाने में संकोच मत कीजिएगा। प्रीपोजिशन की जरूरत होगी तो मैं ना अपने मन से लगाया और गलत हुआ तो हम मदद नहीं करेंगे। तो पहले राउंड सवाई से खेलेंगे, अलग अलग वर्ब रखेंगे। और बच्चों थोड़ी कोशिश करना ना, जो वर्ब तुमने कम रखी हो वो बताना। जैसे हमने अभी यहाँ कहीं देखा, एक कौन है पता नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कौन है, उसको ड्राइव वर्ब बहुत पसंद आ गई, तो वो हर जगह उठा के हर बार ड्राइव।
जो भी बच्चा है, ठीक है। अब 100 से ऊपर वर्ग हो गए यहाँ आसपास तो क्या करोगे? नहीं नहीं रखो भैया। और जो जरूरी नहीं कि उसे में मुंडे घुसेड़ के निकालना, कुछ कॉमन सेंस से वर्ग है ना, है ना? Here we go. I could identify my mistake very easily. मैं अपनी मिस्टेक बहुत ही आसानी से पहचान सकती हूँ, पहचान सकती थी। खाली इसको लगा डाला तो लाइफ नहीं जीवा डाला, जब तक इन दोनों को, जब इन दोनों को लगा डाला तब लाइफ जीवा डाला, नहीं तो ठीक डाला। सही है। I could identify my mistake very easily. मैं अपनी गलती आसानी से पहचान सकती थी। हो गया। हमने यहाँ मैं के लिए सत्य लिखा, पुरुषवाचक, यहाँ स्त्रीवाचक लिखा, यहाँ बहुवचनवाचक लिखा, और सुमान इसलिए लिख दिया कि और भी मिलते जुलते शब्द आ सकते। एक बार हमारे साथ बोलेगा, I could identify my mistake easily. मैं अपनी गलती आसानी से पहचान सकता था। आप अपने हिसाब से बोलिएगा, अगर आप इसके लिए हैं तो शक्ति बोलिएगा, ठीक है? तो हमने आपको रख के बता दिया कि हिंदी में तो मैं अपनी दूसरे नंबर पे आ गया, गलती तीसरे नंबर पे आ गया। अरे आप लोगों से हमने पहले दिन एक सवाल बोला था कि इस क्लास में एक गलत सेंटेंस प्रिंट है, आप लोगों को मिला आज तक? नहीं, वहां नहीं। तुम्हें मिला? बता। I going at. वेरी गुड। बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है I going and। सर उसी टाइम तो ये क्यों लिख के रखा समझ गए ना? हम सब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम सबको ये गंदी आदत है। पहले देखा आई तो हक से रख दिया, फिर देखा जा तो रख दिया गो, फिर लगा दिया आई एन, फिर उनके लिए एम, आई गोइंग एम, लुट गई लाई, हो गया गलत। इसलिए ये लिख के रखा है कि ऐसा नहीं करना। मिसेस से बोलिए वैसे नहीं करना है। Very good. I could have washed after coming home. मैं घर आने से पहले के बाद मैं घर आने के बाद हाथ मुंह धो सकती थी। हमने इनको मुंह हाथ धोने के लिए बड़ी खूबसूरत लेटेस्ट वर्ड लिखवाई है, जिसका इसने बड़ा खूबसूरत प्रयोग किया। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, वॉश योर लेग्स देन हैंड्स एंड माउथ एंड फेस, ये सारे अंग रख देते हैं उसमें, सबकी जरूरत नहीं है। बोलेगा she could have washed after coming back home. वह घर आने के बाद हाथ मुंह धो सकती थी। I could lie in the school. बिल्कुल ठीक। I could lie in the school. मैं स्कूल में झूठ बोल सकता। अभी तक ये वर्ग लिखा ही नहीं है शायद,
क्योंकि हमने देखा हिंदी मीडियम वाले टेल एलाई स्पीक एलाई का खूब बकराते। अच्छा किया है दोस्तों ने ये बात। देखिए दोस्तों, ये नया बच्चा है, इसका पालन नहीं कर रहा है, उसका सेंटेंस I could write easily on the blackboard. मैं आगे तो blackboard पे लिख सकता था। अभी भी उसका क्रम करो, हम सही कर रहे हैं। उसने टाइप किया है, अच्छा कोशिश तो कर रहा है, अच्छा सेंटेंस करना। What is your name? विनायक। विनायक। राइट। अब जैसे ही आप यहाँ वर्ब रहते हैं राइट, तो आदमी पूछेगा कहाँ, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑन द बोर्ड। इजी। अब यहाँ पे जाके खत्म हो, लेकिन हिंदी ऐसा होगा। विनायक बोर्ड पर आसानी से लिख सकता ऐसा बनता है। हमारी व्याकरण अलग है, उनकी बहुत आसान। आप सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ड कौन सी है, सहायक की है वो रखिए, उसके बाद उठा के अपने उसमें से वर्ड रख लीजिए। फिर जरूरत हो तो ये रखिए, नहीं है तो मत रखिए। बन जाए तो रखिए, नहीं तो कोई बात। I could prepare for exam, but time is over. मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता था, but time समाप्त हो गया। हो गया? Sorry. इन्होंने एक्स्ट्रा सेंटेंस लगाने की अच्छी कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी चीज सुनना बहुत काम आएगी। अगर भूतकाल से सेंटेंस शुरू होता है, उसके पीछे आने वाले हर सेंटेंस को भूतकाल में ही जाना। देखिए बहुत सारी। अब इनके सेंटेंस को एक लेटर बदल के भूतकाल बनाया था, और बदले एक लेटर। कुछ नहीं, वॉज बस कुछ नहीं, वॉज। दूसरा भी भूतकाल हो गया। I could prepare for exam, but time was over. टाइम में थोड़ी सी लिपस्टिक लगा, The time was over. अच्छा लगा ना? लिपस्टिक लगाना चाहिए। अच्छा, I could prepare for exam, but the time was over. मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता था, बट टाइम समाप्त हो गया। उस तरफ से नहीं जाओ भैया। कुछ नहीं, यस सर, दिखता नहीं है, फिर वो आगे भी नहीं होते, संकोच में बैठते हैं। I could play on the garden. हमने पहले ही बोल दिया था, प्रपोजिशन नहीं लगाओगे तो मैं मदद करूंगा, अपने मन से लगाओगे तो नहीं। नेक्स्ट। I could sleep yesterday before going to coaching. मैं कल कोचिंग आने के पहले सो सकता था। He could sleep before going to the coaching. Yesterday लगाया था। Next. I could burn the evidence of crime.
वेरी नाइस। जुर्म के सबूत मिटा सकता था, जला सकता था। जला सकता। अब दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनको ऐसा लगता है अरे यार मैंने ये बात सोच के रखी थी, उसने मेरी तो कट जाती है, मैं तो आखिरी में बैठता हूँ, मैं क्या करूँ, सबकी जरूरत नहीं है। उसने जो इन्होंने जो वर्ब लिए उन्होंने लिखवाई है या नहीं पता नहीं है, लेकिन है तो कॉमन। और कोई भी एविडेंस जो होते हैं, सबूत, आमतौर पर हमने फिल्मों में देखा ही है कि वो जलाए जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप रजिस्टर के मोहताज, बड़े आसानी से। वेरी नाइस। एक बार बोलना दोस्त, आई गुड, सब लोग बोल दो। आई गुड बर्न द एविडेंस ऑफ क्राइम। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, द एविडेंस ऑफ द क्राइम, अपराध के सबूत। I could swim. I could swim in river. उसकी जगह हम अभी वो नए हैं ना, तो बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं लगा पाते, हम ठीक कर दे रहे हैं इसे। मिस्टर पटेल could swim in Gauri Ghat on Sunday. पटेल साहब संडे को गाड़ी घाट में स्विमिंग कर सकते हैं। हमने इंग्लिश के शब्द का प्रयोग किया क्योंकि हम बोलते ही हैं ऐसे, तुम्हें स्विमिंग आती नहीं आती ऐसा बोलते, हमने वैसा हिंदी किया। अब हमने गौरी घाट लगाए तो सेंटेंस अंग्रेजी नहीं लग रहा है, बिल्कुल अपना सा लग रहा है। हाँ यार, गौरी घाट तो अपने समझाना है। और संडे लगाने से क्लियर हो गया भैया, आप जॉब में है या बिजनेस है, वर्किंग पर्सन है, तो कब टाइम मिलता है? संडे को। I could help that lady. मैं उस लेडी की मदद कर सकता था। बहुत बढ़िया, इसमें कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं थी। अच्छा किया तुमने नहीं लगाया, तुम बहुत दिनों बाद प्रपोजिशन के दलदल से बाहर आ रहे, बधाई। अभी देखो वो फंसी, वो होता है सबके साथ शुरू में, कोई ना कोई प्रपोजिशन लगाने का शौक रहता है। हम फिर से बोल दे रहे बच्चे, प्रपोजिशन नहीं लगाओगे कोई हर्ज नहीं है, मैं हूं ना, और लगाओगे तो फिर नहीं। ये सेंटेंस धीरे धीरे I could help that lady. ये क्या है बच्चों? हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कहाँ गए? अरे नहीं, बेटा कोई भी शब्द जब विशेषता बताएगा तो वो विशेषण होगा। इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे एक लाइन में लिख के रखी है, लेकिन वो लाइन तो हमें दिखती नहीं है, तो हम पास ये है परिभाषा। और हम इसका सबसे आसान उदाहरण देते हैं, फिर से एक बार बोल दो हमारे साथ। I am teaching you. कर्ता कौन है? क्रिया कौन सी कर रहे हैं? असर किससे पढ़ रहे हैं?
ऑब्जेक्ट कौन है? उस सेंटेंस में यू नाम का या आप लोग हैं। हम जो भी कर रहे हैं उसका आंसर पढ़ो आपके। वो बात है कि कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं। बोलो भारत माता की जय। तो ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। अब मदद कौन कर रहा है? जी। किसके ऊपर असर पड़ रहा है? कौन सी लेडी? दैट लेडी। असर पड़ रहा है? सड़क पार करा रहे, कुछ भी कर रहे। I could crack the UPSC exam, but I was not capable. तुम्हें हमने वर्स का बताया तो उसे ध्यान से सुनो, लगा दिया। अब बताओ इसमें बता ना दोस्तों, सभी लोग ईमानदारी से इतना करने के लिए क्या बहुत ही दिमाग नाम की चीज की जरूरत पड़ती है? तुम लोग को जबरदस्ती पीछे डांट के तुम लोग को गधा बनाया पड़े थे। कुछ कोई गधा नहीं होता मानो। हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है भैया ये दोनों शब्द, ना इंटेलिजेंट है ना डफर है, दोनों नहीं, हम दोनों यूज नहीं। अब ये मत पूछना कहाँ से खरीदी ऐसी बॉक्स डिक्शनरी। याद आ गई पिक्चर? तो ये बोला जाता है उदाहरण। इस क्लास में हम शुरू में बोलते भी, हम फिर से बोल दे रहे भैया वो बाहर जो हैंगर टंगे उसमें आप अपना दिमाग टांग के आया कर, मत लाया कर, लेकिन कान दोनों लेकर आया करो। इस क्लास में बस 2 कान चाहिए, भगवान ने इसलिए 2 दिए। और गणेश जी सबसे बुद्धिमान क्यों माने जाते? बुद्धि के देवता क्योंकि उनके तो भैया इसमें गणपति जी की थोड़ी सी सेवा करो, उसको अच्छा शर्माओ और अपने बढ़िया कान अच्छे रखो। इस क्लास में कुछ नहीं है यार, इंग्लिश आप आश्चर्य करेंगे कुछ दिन में। इंग्लिश जैसी सड़ी सी लैंग्वेज है ही नहीं। सबसे आसान भाषा अधिकारियों की भाषा क्या है? मात्र 26 लैंग्वेज। अब हिंदी में जस्ट डबल 26 दूनी 52। और हम क्या मजे से बोलते हैं। तो इंग्लिश कठिन नहीं है। हमारे आसपास के लोगों ने तथाकथित टीचर्स ने हमें डरा दिया है कि इंग्लिश चुड़ैला नहीं, तो अपन बसते जा रहे हैं और वो अपने पीछे भाग रहेंगे। भगो नहीं उससे, रुक जाओ, मुड़ो और ऐसे शाहरुख खान की तरह बाहर फटाओ, किरण बोल के गले से लग जाएगी। इंग्लिश मस्त लैंग्वेज, बहुत आसान है। I saw it. हमें भी वही लगा। Arna was riding the bike. कवरिंग थी क्या से बाहर हाँ कवरिंग थी लेकिन अर्णव के लिए तब बोले नहीं। स्पेलिंग बताओ जो वर्ब रखी स्पेलिंग किसने सही फॉर्म भैया को बताओ कौन सा फॉर्म रखना है वर्ब का। हाँ बताओ जीवन का हिंदी बताओ। अच्छा नहीं
एक होता है ना V1 कहेंगे, क्रिया का पहला क्या बोलते हैं, रख दो भैया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इससे सीखिए आप, ठीक है, इससे सीखना है। वहां से यहाँ तक उसमें किसी को ध्यान से, और सब अभी तक कुछ मिटाया नहीं, जानबूझ के पूछे, सब आपके साथ। चलो एक मिनट चेक मारे, चेक सुन लो बेटा, एक मौका मिला, वहां पे भी एक मौका है। मैं बाधा डाल सकता था। बिल्कुल सही, बड़ा सेंटेंस मत बनाओ, बिल्कुल सही है, ये वर्ब लिखी है, अच्छा है तुमने वर्ब दी, है ना, बोलेगा बेटा बड़ा से नहीं निखिल पटेल। बोलेगा निखिल, निखिल को सकता था, हो सकता था। समझ गए होंगे, हमने जानबूझ के बोला था कि तुम्हारी चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आए, और एक दो बच्चे जो थोड़ा सा स्ट्रेस में बैठे हैं उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाए और वो सही सेंटेंस बना ले। चेक 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 तुम लोग समझ गया होगे ना, यहाँ से वहां तक आई का राउंड खेलना था, खेल लिया है, अब इसमें और कोई क्रिएटिविटी तो है नहीं, वहां सेंटेंस बन जाए, यहाँ बन जाए, उसके बाद अपन सब्जेक्ट बदल लेते हैं, है ना। आज काजल नहीं आई, लेकिन आप हमें काजल की याद दिलाए। अरे तुम्हारी मम्मी ना काजल दीदी की नकल कर दी है। काजल ने आज तक का बहुत ही कम सीधे सेंटेंस बनाया, वो हमेशा हमसे कुछ न कुछ सलाह लेती है। अच्छा, आप ही के बाजू में बैठती है ना काजल? तुमने ध्यान दिया बेटा, वो काजल दीदी जो है, हाँ, उसको इधर उधर हम करते रहे। अभी आपके सामने एक बिल्कुल सादा सिंपल शाकाहारी सेंटेंस है, कुछ नहीं किया उस बच्चे ने, हाँ, और रोक दिया। दोस्तों, सर की खरीदारी में ही समझदार, मत बनाओ बड़ा सा, मत बनाओ, छोटा बनाओ, एक रहे। नहीं, लेकिन बेटा आज अपन थोड़ा सा गाना गाते हैं। क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक यानी कर्म के साथ, उसमें कर्म का आना जरूरी है। तो ये अधूरी सी लग रही, तो आप एक कोई बहुत अच्छी सी चीज रखते हैं वहां, जिसको ऑब्जेक्ट करते हैं, बन जाए।
और कुछ भी जाने। सबसे अच्छा और नहीं भी बनता तो क्या दिक्कत, कौन अपन प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ चलो हमारे साथ बोलिएगा। आई आलू का पराठा। सबसे कॉमन चीज हमने रख दी, ये रख के हमने उनके मन में जो अंग्रेजी का बोझ चल रहा था वो हटाया। और एक और बनवा देते हैं, बोलेगा भिंडी की सब्जी अच्छी, सबसे अच्छी लगती। हाँ चलो चेक बोलो भारत माता की जय। कंप्लीट मैं डांस कर सकता हूँ। थैंक यू। देख के वेलकम हो गया। हाँ तो शर्मा के उधर देखने लगे, सीटी मार के, जैसे लड़की को सीटी मार के दूसरी कौन सी भाषा कठिन है? बेकार में इंग्लिश कठिन, कौन ने बोली इंग्लिश कठिन है ना। हम यहाँ तो जयराम जी की कर रहे हैं।